السلام علیکم، آج 3 بجے میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں سعدیہ خواص. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت اور کالعدم تنظیم میں معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے. مظاہرین نے 10 روز بعد جی ٹی روڈ کو خالی کر دیا ہے. مظاہرین سڑک سے ایک خالی میدان میں منتقل ہو گئے ہیں. وزیر مملکت علی محمد نے ٹویٹ کر کے کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. حکومت اور کالعدم تنظیم میں مذاکرات کامیاب. مظاہرین نے معاہدے پر عمل درآمد کا کر دیا آغاز. دھرنا مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو خالی کر دیا. وزیر آباد میں ذاکر علی خان چوک سے اللہ چوک تک سب کلیئر ہو گیا. وزیر مملکت علی محمد خان نے ٹویٹ کر کے کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کا شکریہ ادا کیا. لکھا معاہدے کے مطابق دھرنے کے شرکا جی ٹی روڈ سے ایک کھلے میدان میں منتقل ہو گئے. معاہدے کی پاسداری پر کالعدم ٹی ایل پی کی قیادت کا شکر گزار ہوں. حکومت بھی معاہدے پر عمل کر رہی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ آج لاہور میں ہوگی. کامیاب مذاکرات اور سڑکیں خالی ہونے کے بعد موبائل فون سروس بھی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن انٹرنیٹ سروس اب بھی بند ہے. کالعدم تنظیم کے شرکا نے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے جی ٹی روڈ خالی کر دیا. قائدین نے شرکا کو واپسی کی اجازت بھی دے دی، جس کے بعد کارکنوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا. مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے سید مظفر زیدی سے. جی مظفر زیدی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، وزیر آباد میں جو یہ شرکاء تھے کالعدم تنظیم کے وہ گزشتہ 4 روز سے یہاں پر موجود تھے، لیکن اعلیٰ قیادت کی جانب سے ان کو احکامات آئے ہیں کہ جو مین اللہ والا چوک ہے اس کو خالی کر دیا جائے. ان احکامات کی روشنی میں جو کالعدم تنظیم کے شرکاء ہیں انہوں نے جو مین جی ٹی روڈ ہے جو وزیر آباد سے گجرات اور گوجرانوالہ کی جانب جاتا ہے اس روڈ کو خالی کر کے اس سے جو ملیکہ پارک ہے وہاں پر اپنے خیمے لگا لیے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ جو جی ٹی روڈ کی ایک سڑک ہے جو گوجرانوالہ سے وزیر آباد کی جانب آتی ہے، ایک سڑک کو بھی کھول دیا گیا ہے جہاں پر اس وقت ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بدستور جاری ہے. لیکن اس کے اگر دوسری جانب بات کی جائے تو جو مین چناب پل ہے وہ پل ابھی تک جو ہے بند ہے. وہاں پر کنٹینر بھی موجود ہے اور خندقیں بھی جو ہے وہ کھولی گئی ہیں. بالکل، مظاہرین نے سڑک سے خالی میدان میں وہ منتقل ہو گئے ہیں اور جی ٹی روڈ کو کلیئر کر دیا. بہت شکریہ مظفر زیدی. وزیر آباد تو کھل گیا لیکن جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند ہیں. مسافر اور شہری پریشان ہیں. تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانیں گے ہمارے نمائندے شہباز پٹ سے. جی بالکل، حکومت اور مذہبی جماعت کے مابین معاہدہ ہونے کے باوجود تاحال جہلم کے تینوں پل ٹریفک کے لیے بند ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو، شہریوں کو، تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا کیا کہتے ہیں. آج 6واں دن ہے ساڑھے تک کھڑے ہوا تے کوئی رستہ نہیں، کوئی پٹرول نہیں ہے، کوئی لینی نہیں، کوئی دینی نہیں ہے. جی بالکل، نہ پیٹرول مل رہا ہے نہ ڈیزل مل رہا ہے، راستے بند ہیں. آپ بتائیے گا آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں. ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں لیکن یونیورسٹیاں تقریباً 6 دن ہو گئے ہیں بند ہے، تو ہمارا جانا یعنی کہ کافی مشکل ہوا ہے. پڑھائی بھی ہماری متاثر ہو رہی ہے. پڑھائی بھی متاثر ہو رہی ہے. لوگ کنٹینر کے نیچے سے گزر کر سرائے عالمگیر گجرات کی طرف پیدل سفر کرنے پہ مجبور ہیں. آپ بتائیے گا آپ کیا کہتے ہیں. جی میں کم تو جانا ہے، 6واں دن ہے، کم تو نہ جا سکتا، راستے بند ہوئے، نہ پٹرول دینے پہ نہ ڈیزل دینے پہ. سر جی بالکل، ڈیزل اور پٹرول کی قلت ہے. لوگ کام کاج پہ نہیں جا رہے، یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹ نہیں پہنچ پا رہے. لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے، فوتگیوں میں شرکت کرنے کے لیے، شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے نہیں پہنچ پا رہے. تینوں پل تاحال صورتحال جو کی تو ہے اور بند ہیں، کنٹینر رکھ کر بند کیے گئے ہیں. پنجاب میں کالعدم تنظیم کے حملے میں زخمی ہونے والا پولیس اہلکار دم توڑ گیا. اے ایس آئی ابو بکر سادھو کی میں زخمی ہوا، جس کے بعد پولیس کے شہید اہلکاروں کی تعداد 5 ہو گئی ہے. ترجمان پولیس کے مطابق اے ایس آئی ابو بکر جنرل اسپتال میں زیر علاج تھا. ادھر جڑواں شہروں میں معمولات زندگی 10 روز بعد بحال ہو گئے ہیں. مری روڈ اور ملیکہ شاہراہوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں. میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی ہے اور تعلیمی ادارے بھی کھل گئے ہیں. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے. تفصیل ریحان شیخ کی اس رپورٹ میں. مشکلات نے کہا خیر آباد فیض آباد پھر سے آباد. 10 روز بعد محاصرہ ختم، نقل و حمل رواں دواں، معمولات زندگی بحال.
जन्नाटे बढ़ती गाड़ियां और शहरियों की चहल पहल का ये मंजर फैजाबाद का है, जो 10 रोज बाद फिर आबाद हो गया। मरी रोड और मुल्का शाहराहों से कंटेनर, खारदार तारें और रुकावटें हटा दी गयी। मेट्रो बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल तो तालीमी इदारे भी खुल गए। रुकावटों का शिकार रहने वाले शहरी रियासत को मशवरा देते हुए कहते हैं कि शरपसंदाना सोच, जत्थों और एहतजाज का मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसका परमानेंट कोई हल होना चाहिए ताकि लोग इस किस्म की तकलीफ से बचे। ऑलरेडी हम मतलब सफर कर रहे हैं, महंगाई जो है वो आसमानों पे है। हुकूमत को आवाम की भी सुननी चाहिए और जो है ना आवाम के साथ मिल के अच्छे फैसले करने चाहिए। बातचीत से मसाइल हल करने चाहिए, हुकूमत को भी, लोगों को भी और सब लोगों को। कुछ शहरी पुरअमन माहौल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मुल्की मसाइल भी गिनवा रहे हैं। गाड़ियों वालों ने भी बहुत ज्यादा किराए बढ़ाए हुए थे, आज मेट्रो भी चल रही है और बाकी तमाम ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। ये आवाम के लिए आज बहुत अच्छा इकदाम किया हुकूमत ने। बिजली का मसला, रोड का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला, किधर भी देखो पुलिस का मसला, कचेरी का मसला, अस्पताल का मसला, किधर भी देखो तो पाकिस्तान में यही सब मसले चले। जुड़वा शहरों के योमिया मुसाफिर हुकूमत से मामलात हल होने पर संजीदा और मुस्तकिल मंसूबा बनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। कलदम तंजीम से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म का पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। इमरान खान की सदारत में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास आज होगा। कोर कमेटी को कलदम तंजीम से मुआहदे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। पार्टी उमूर और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों से भी आगाह किया जाएगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कलदम तंजीम से मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म का पार्टी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। नैब ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम के लिए एक और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस दोबारा नैब के हवाले होंगे। 6 अक्टूबर से कबल के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस पिछले ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। ज़र जमानत के तयन का इख्तियार भी अदालत को दे दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत मुजारबा स्कैंडल केसेस पर नैब का दायरा इख्तियार बहाल कर दिया गया। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जज की तर्ज पर हटाया जा सकेगा। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त नहीं आया, आने वाले दिनों में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये समझ चुके हैं आने वाला वक्त इनके लिए खतरनाक है, इसीलिए नैब ऑर्डिनेंस लाया गया है। सियासत में कोई चीज भी हो सकती है, जब वक्त आएगा तो इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे पीडीएम में। अगर ऐसा फैसला होता है तमाम पार्टी से मुशावरत करेंगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों और महीनों में हम इस हुकूमत को कतन किसी लिहाज से भी कोई स्पेस नहीं देंगे। इस हुकूमत ने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो समझ रहे हैं कि अगला वक्त उनका बहुत खतरनाक और खराब वक्त आने वाला है। उससे बचने के लिए, अपने आप को एनआरओ देने के लिए ये नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले और बिल्कुल उसके उलट उन्होंने यहाँ पर काम किया और आज पाकिस्तान की मईशत वहां पहुंच गई है कि खौफ आता है कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत होगी वो किस तरह इस तबाहशुदा ये मईशत को दोबारा बहाल कर सकेगी। मफाहमत का बादशाह अगर आपने मुझे कहा है तो बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता, बल्कि जाता ही नहीं बादशाह तो जेल। पीटीआई ने उस जमाने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की, लेकिन हमने जब भी टीएलपी ने धरने दिए हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। हम इससे सियासी फायदा नहीं उठाएंगे। हवाओं का रुख बदल चुका है। पीटीआई के कई लोग पीपल्स पार्टी में आएंगे। आइंदा इलेक्शन में जमानतें जब्त होंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा, कहते हैं कलदम तंजीम के मामले पर हुकूमती नाअहली के बाइस कीमती जानों का नुकसान हुआ। लीडरशिप के आना या कुछ लोगों का आना अलग बात है। इंशाल्लाह ताला ऐसे बहुत लोग आएंगे। जरा लोगों की हालत देखी क्या है और लोगों के जज्बात देखें और देखी क्या है। ये हवाओं के रुख जो है ना बिल्कुल बदल चुके हैं। जैसे वो जीते भी वो भी सबको पता है। उनको जो 2-4% लोगों ने वोट दिए थे वो लोग भी अब मुनाफिक हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीटीआई के लोग अपनी जमानतें जब्त कराएंगे जब भी मुल्क में लगे। हर चीज को कॉम्प्लिकेट करके खराब करके
और फिर मुबारकबादी वसूल करना चाहते हैं। ये मामले के लिए इन लोगों ने कीमती जाने हमारे पुलिस के एहसास शहीद और लोगों को नुकसान पहुंचा, ये खुद ही अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं, फिर वो SOS का पैगाम देते हैं और फिर दूसरों कहते हैं आओ मदद के लिए, और बाकी लोगों को आके इनको बेल आउट करना पड़ता है। पाकिस्तानी इदारे, बैंक्स और अहम कंपनी साइबर हमलों के निशाने पर हैं। नेशनल बैंक को फरवरी में ही खत लिख दिया था, लेकिन तजावीज पर अमल नहीं किया गया। वफाकी वजीर बराए IT अमीनुल हक का इंकशाफ, कहा साइबर सिक्योरिटी पर दीगर इदारों को भी खत लिखा गया है। हमले का खतरा दिन ब दिन बढ़ रहा है। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर साइबर हमले नाकाम बनाए जाते हैं। पिछले चंद महीनों में FBR एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, फिर हमें पता लगता है मीज़ान बैंक है, फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पे भी मामला खराब हुए, और अब हमें पता लगता है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे भी मामला हुए। तो इन तमाम लोगों को मुझे याद है कि फरवरी के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ IT ने तमाम सरकारी इदारों को खत लिखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काम नहीं किया। जब FBR को इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि IT एक्सपर्ट जो बैठा हुआ था वहां पे FBR के अंदर, वो कस्टम ग्रेड का अफसर था। अब कस्टम ग्रेड का अफसर क्या देखेगा IT के मामला को? सेम कंडीशन मेरा ख्याल नेशनल बैंक के साथ भी हुआ है। आप लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, IT एक्सपर्ट को अपने साथ बैठाएंगे जिससे सूरत हाल बेहतर होती है। FIA ने साइबर हमले की तहकीकात का आगाज कर दिया। साइबर क्राइम की टीम नेशनल बैंक हेड ऑफिस पहुंच चुकी है। टीम सिस्टम के हार्डवेयर का मुआयना करेगी। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम इमरान रियाज की अफसरान से मुलाकात भी शेड्यूल है। नेशनल बैंक का कहना है कि साइबर हमले के बाद मुतासरा सिस्टम को अलग कर दिया गया है। सारिफीन का डेटा और सरमाया मुकम्मल महफूज है। IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं। मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि स्टेट बैंक कानून से मुतालिक आईनी तरमीम की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। कहा आलमी कीमतों पर कंट्रोल नहीं, महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, इस हफ्ते करेंगे यार, मैं तो 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ। के साथ मामला तय हो चुके हैं यार। एक मसला है बस, उसके ऊपर लीगल ओपिनियन आपस में होगी और हमारे, बस बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। स्टेट बैंक का जो लॉ है, पुराना जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था, उसके कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती ना। हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम वही उन शिकों को आगे पीछे कर रहे हैं। ये स्टेट बैंक के कानून से रिलेटेड कानून के रिलेटेड। नौ मुंतखब स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली जान मोहम्मद जमाली की तबीयत नासाज। शदीद अलालत के बाइस जान जमाली को कोयटा से कराची मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात मोहम्मद खालिद से हासिल करते हैं। जी मोहम्मद खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी, स्पीकर असेंबली जान जमाली जिनका दो रोज कबल बिला मुकाबला इंतखाब किया गया था। वजीर आला तलूर बजिंजो के स्पीकरशिप के इस्तीफे के बाद ये खाली नशिस्त हुई थी, जिससे इंतखाब कराने का फैसला किया गया, जिस पर सिर्फ जान जमाली वाहिद उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी जमा कराई गई, और वो इस तरह वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। लेकिन उसी रोज उनकी तबीयत नासाजी के बायस वो हल्फ नहीं उठा सके थे और फौरी तौर पर उन्हें CMH चेस्ट इन्फेक्शन के बाद मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत मजीद खराब होने के बाद वज़ीर आला के खसूसी तैयारे में उन्हें कराची में मुंतकिल किया गया मजीद इलाज के लिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद। सिंध में गंदम चोरी के पीछे वजीर एक्साइज का भाई है। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का दावा। कहते हैं अदी, ओमनी, जेडी और टप्पी का सिस्टम चला गया। नया सिस्टम जुनेद जेडी, कासिम नवीद और मुकेश कुमार चावला का भाई चला रहा है। स्कूल डेस्क स्कैंडल के पीछे बिलावल का PS है। सिंध का सिस्टम इस कंटेनर में खुफिया जगहों से चल रहा है। इन कंटेनरों में जाके खुफिया डील्स होती हैं। ये सिस्टम आजकल सिंध चला रहा है। डेस्कों के पीछे भी ये है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो हो रहा है ये सिस्टम है। गंदम के चोरी के पीछे जो 8 अरब की गंदम चोरी है, ये बैठा हुआ चावला। मैं कहना चाहता हूं शराब के गुत्तों के पीछे ये सिस्टम, कराची को तबाही के पीछे ये सिस्टम, सिंध की करप्शन के पीछे ये सिस्टम। ये नया सिस्टम है, पुराना हो गया। टप्पी सिस्टम गॉन, अद्दी सिस्टम गॉन, डैडी सिस्टम गॉन, ओमनी सिस्टम गॉन। ये अपडेटेड सिस्टम आ गया जी।
2020-21 के अंदर ये नया सिस्टम हुआ है, वो पुराना हो गया। नोकिया सिस्टम थे, ये एंड्रॉइड सिस्टम है, ये आईफोन सिस्टम है। ये पता भी नहीं चलने देते कैसे आई कैसे गई। ये खा गए, ये चूहे खा गए, ये मोटे ताजे चूहे, ये जो खा के पल चुके हैं चूहे, ये चूहे खा गए 8 अरब की गंदम। सादिकाबाद में अंधड़ गैंग के खौफ से मुंतखब नुमाइंदों ने हथियार उठा लिए। पीपल्स पार्टी के MP सरदार मुमताज अली चांग कहते हैं कि हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस हथियार उठाने पर मजबूर हैं। सादिकाबाद में इंधड़ गैंग का खौफ, रुकन पंजाब असम्बली ने हथियार उठा लिए। नवाजाबाद में मुख्तलिफ बरादरियों ने कन्वेंशन मुनाकिद किया। MP सरदार मुमताज अली चांग को डाकुओं की धमकियों पर यकजहती का इजहार किया गया। MP मुमताज अली चांग ने हुकूमती गैर संजीदगी के बायस आज हथियार उठाने पर मजबूर हैं। इसने मजबूरी के तहत अपने भाई की हिफाजत के लिए हथियार उठाया है। ये डॉक्टर बन रहा है, इसको हथियार उठवाया गया है। ये हुकूमत की आंखें खोलने के लिए है। मुकर्रीन ने डाकुओं के खिलाफ एक्शन और साबिक DPO को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा भी किया। गुज़िश्ता माह डाकुओं ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था, लेकिन अब तक किसी एक भी मुलजिम को गिरफ्तार न किया जा सका।